Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the story A House is Not a Home. And in the first part of the story we had studied that the narrator of the story was sitting in his house on a Sunday, and suddenly their house caught the fire, and somehow they escaped from it, and he saw his dear house burning down. And on time the firefighters came and saved his and his mother's life. So what happens next after this terrible incident, we will come to know in our current part. So let us start. 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me, I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. 5 घंटे लगे इस सब चीज़ से बाहर निकलने में। आग पूरी तरीके से बुझ चुकी थी, लेकिन हमारा जो घर था वो लगभग जलकर ख़त्म हो गया था। अचानक से मुझे याद आया कि मैंने अपनी बिल्ली उसको देखा नहीं था, कहाँ थी वो। और मेरे डर को बढ़ाने वाली चीज़ ये थी, मैंने एकदम महसूस किया कि वो कहीं भी नहीं है। तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस आग में जल करके मर गई हो। तभी एकदम से मुझे कोई चीज़ ने हिट किया, यानी कि अंदर ही अंदर कोई सोच मेरे दिमाग में चलती रही कि नया स्कूल, फिर उसके बाद आग, फिर उसके बाद मेरी कैट। तो वो लगभग उसकी आँख से आंसू निकल गए और वो रोने लगा, यानी कि राइटर रोने लगा। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टाइम था जिसमें कि वो सफरिंग कर रहा था, उसको दुख उठा रहा था वो, क्योंकि नया स्कूल मिला, पुराना स्कूल छूट गया। घर में आए तो आग लग गई। बिल्ली मिली, अब बिल्ली उससे छूट गई। तो जो जो चीज़ उसके नज़दीक थी, जिस जिस चीज़ से उसको प्यार था, वो सारी चीज़ें उससे दूर हो गई थी। सो इट वॉज अ वेरी टेरेबल टाइम फॉर हिम. The firemen wouldn't let us go back into the house that night. I was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. फायरमैन ने हम लोगों को घर के अंदर जाने नहीं दिया उस रात, और क्योंकि उस समय बहुत ख़तरा था। ज़िंदा या मुर्दा मैं अपनी कैट के बिना नहीं रह सकता था, यानी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अपनी कैट से दूर रहना। अफेक्शन ही उससे इतना ज़्यादा था, और इन सब चीज़ के बावजूद मुझे जाना ही था। हमने जो अपना सामान था, हमारे कपड़े वगैरह, वो हमने, और जो फायर फाइटर्स के जो ब्लैंकेट्स थे उनको हमने कार में डाला, और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो घर था वहाँ वो चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे, मंडे, आई वेंट टू स्कूल. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That is what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. क्या होता है कि अगले दिन मंडे था,
मैं स्कूल गया तो क्या होता है कि जब आग लगी थी तो मैंने वही ड्रेस पहन कर रखी थी जिसको मैं सुबह चर्च पहन करके गया था, और मेरे पास जूते भी नहीं थे क्योंकि होमवर्क करते टाइम मैंने उनको यहाँ वहाँ फेंक दिया था। अब जब घर में आग लगी तो जूते भी उस आग में जल गए थे। सो मैंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ बोरो किए थे, और मैंने अपनी मदर को कन्विंस करने की कोशिश की कि क्या मैं स्कूल से दूर नहीं रह सकता, मतलब क्या मैं स्कूल छोड़कर घर पर नहीं रह सकता। जो अभी ये चीज़ें घटनाएं हुई हैं, सो दे वर वेरी डेवस्टेटिंग। सो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा उनसे दूर जाना चाहता हूँ, तो स्कूल जाकर वो चीज़ें मुझे बार बार परेशान करेंगी, तो क्या मैं घर से रह के ही काम नहीं कर सकता। मेरी मदर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, और मैं हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बड़े वियर्ड दिखते थे, ना मेरे पास किताबें थी, ना होमवर्क था, ना मेरा बैग था। यानी कि मेरा जो बैग था वो मेरी ज़िंदगी थी। जितना मैं उसमें उसको सोचने की कोशिश करता था, मैटर उतना ज़्यादा वर्स मेरे लिए हो जाता था। क्या मैं ऐसे ही आउटकास्ट या गीक बनने के लिए पैदा हुआ था, यानी कि सबसे बिल्कुल अलग स्ट्रेंज प्राणी बनने के लिए पैदा हुआ था? ऐसा उस टाइम मुझे लग रहा था। मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, बदलना नहीं चाहता था, और अगर लाइफ इसी तरीके से चलने वाली थी और कोई बदलाव नहीं होने वाला था, तो मैं चाहता था कि मेरी उम्र यहीं रुक जाए, मैं आगे ना बढ़ूँ, मैं जस्ट मर जाना चाहता था। I walked around school like a zombie. Everything felt surreal, and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. अब मैं स्कूल में ज़ोंबी की तरह घूम रहा था, यानी कि लोनली घूम रहा था, और हर एक चीज़ मुझे बिल्कुल यथार्थ दिख रही थी। मैं ये चीज़ पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि क्या होने जा रहा था, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी थी मेरी लाइफ में, जिनको मैं जानता था, मेरे पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी कैट, सब मुझसे दूर हो चुका था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. जब मैं स्कूल से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, जो कि जल चुका था, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही एक डेवेस्टेटिंग कंडीशन में हमारा घर था। मैंने देखा कि कितना कुछ डैमेज हो चुका था, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी जिसको पानी और केमिकल, इसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बच गई थी। मेरी मदर के साहसिक प्रयास की वजह से हमने फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर जो पर्सनल आइटम्स थे उनको बचाने में हम कामयाब हो गए थे। लेकिन मेरी कैट जा चुकी थी, और जिसको याद करके मुझे बड़ा पेन महसूस होता था। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I would have to go buy some clothes for school. ये विलाप करने का समय नहीं था। ग्रीव का मतलब होता है विलाप करना। ये विलाप करने का समय नहीं था, और मेरी मदर मुझे उस घर से बाहर निकाल करके लेके आई, क्योंकि अब मैं रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी थी, और साथ ही मुझे कपड़े और स्कूल की जो ड्रेस थी वो ख़रीदनी थी। So this was the second part of the story. And after this devastating incident, what will happen with the writer and how will he adjust in this critical situation, or how he will get rid of these devastating feelings which are nagging him over and over, and will he be able to overcome his loneliness in the absence of his dear cat?
And will he find his cat again? All these questions we will resolve in our next part of the story. Till then, thank you very much.